Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. Yes, dear students, we all are missing you very, very much. And I wish as soon as possible school will open and we all see you in a healthy mode. Yes, dear students, but until we all are connected with the video lectures, so I hope you all are doing your work regularly and studying on regular basis. So dear students, we have discuss about chapter number 11. The chapter name is exchange rate, foreign exchange rate. So many topics we have completed in this chapter, but before starting today's topic we will recap all the points. Yes, so first of all we will start with the meaning, that what is foreign exchange. So dear students, foreign currency means foreign exchange. It means foreign exchange refers to foreign currency. किसी भी देश की करेंसी हो वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज होगा. एंड व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट? अ रेट एट विच करेंसी for other countries we can buy with our country's currency, that is foreign exchange rate. Or you can call that ratio between two countries currency, like $1 equals to rupees 50, so 1:50 is foreign exchange rate. Yes, dear students, so types of foreign exchange rate we have discussed that there are the two types of major types of uh, exchange rate. First is flexible exchange rate and second is fixed exchange rate. So in flexible exchange rate, it is that rate which is determined by the market forces. जैसे market forces means demand and supply always decide that if demand will increase for the foreign exchange, definitely exchange rate will increase, or if supply will increase, then definitely exchange rate will decrease. Demand always be downward, as you all know, because there is an inverse relation between the exchange rate and the demand. And supply of the foreign exchange will always be upward. So next is, what is equilibrium rate of exchange or par rate of exchange? It is that rate of exchange where demand and supply meet to each other. जहाँ दोनों meet करेंगी वो point ही आपका equilibrium point होगा, equilibrium rate of exchange होगा. Yes, so now next is, what happens in the situation when demand and supply changes? Demand and supply changes means maybe demand increase or decrease, or maybe supply increase or decrease. So look, have a look here. We have completed all the four situations. Yes, first, what happened when in demand increase for the foreign exchange? So dear students, very simple. First of all, we have to show equilibrium point, or in equilibrium point supply is upward, demand is downward. This is the equilibrium point. But when demand will increase, so just shift the demand curve forward, or now notice that foreign exchange rate is increasing. Foreign exchange rate is increasing. So demand increase होते foreign exchange rate increase होगा. Next is, what happen when foreign exchange demand for foreign exchange is decreasing? अब demand कम हो रही है, it means the simple answer is, with the help of diagram you can show supply curve is upward sloping, demand curve is downward. This is the equilibrium rate of exchange. But when demand decreasing, shift backward. Now notice the point, this is decrease in foreign exchange rate. So dear student, very important two questions you can learn from both the diagram. When rate of exchange increase, this is depreciation of our currency. It means अब हमें $1 के लिए पहले से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे. दिस इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज. और व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज, लुक एट इन द एग्जांपल 60 to 50 अब हो गए हैं, तो इट मीन्स वी नीड लेस इंडियन रुपीज़ टू बाय अब $1. दैट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. अब ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन है. नाउ इट्स अ टर्न फॉर द सप्लाई. इन सेम, व्हेन सप्लाई विल इंक्रीज, when supply will increase, then foreign exchange rate will decrease. So that this is known as appreciation. And when supply decrease, foreign exchange rate will increase. So this is depreciation of domestic currency. There are the four cases. We can complete all the points, and then after we have already discussed appreciation of domestic currency and depreciation of domestic currency. In the simple words beta, you can learn एप्रिसिएशन मीन्स एनी सिचुएशन व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज. जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है. और जब भी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा विद एनी रीज़न,
बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा बेटा, दिस इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके, सो टुडे फिक्स एक्सचेंज रेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट मीन्स इट इज़ दैट रेट विच इज़ डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ओनली, जिसे सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इट विल नॉट चेंज एज पर द कंडीशन। येस, depreciation and devaluation. So today is very interesting topic, the what is the difference between depreciation और devaluation? दोनों का मतलब ही कम होना होता है। depreciation और devaluation, depreciation means that it happens because of market conditions। ये अपने आप होता है, nobody responsible for that, only market demand and supply is responsible for that। if demand increasing, then foreign exchange rate will decrease। when demand will increasing, foreign exchange rate will increase, and this is the depreciation of domestic currency। और जैसे ही exchange rate कम होगा, supply increase हो रही है और exchange rate कम हो रहा है, तो it means ये हमारी domestic currency का appreciation हो जाएगा। so dear students, depreciation always be occurs by बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स मीन्स डिमांड सप्लाई जब भी चेंज होगी, सो वो डेप्रिसिएशन होगा। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट समटाइम्स गवर्नमेंट इंटेंशनली डिक्रीज द रेट ऑफ इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कभी कभी गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। ओके, सो उसे हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डेलिब्रेटली, इंटेंशनली आप कह सकते हो। तो डेप्रिसिएशन अपने आप होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट फोर्स ओनली, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बट डिवैल्यूएशन जो है बेटा, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझकर करती है अपनी मर्जी से। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या रीज़न है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, जब भी डेप्रिसिएशन होता है, इट मीन्स फॉरनर्स हमारे यहाँ से सस्ता सामान लेकर जा सकते हैं, और सस्ता सामान लेने का मतलब है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे बेटा, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। डिवैल्यूएशन उसी की एक फॉर्मेशन है। बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट भी डिवैल्यूएशन को अडॉप्ट करती है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि फॉरनर्स हमारे यहाँ से सामान तभी लेंगे जब उन्हें सस्ता मिलेगा। ओके, yes, appreciation and revaluation। appreciation occurs by the market forces। जब भी हमें US डॉलर सस्ता मिल रहा है, दैट इज़ एप्रिसिएशन। फॉरेन एक्सचेंज रेट जब भी कम होगा, आप कह सकते हो व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज विल डिक्रीज, जब भी रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है, दैट इज़ एप्रिसिएशन। ओके, दैट इज़ एप्रिसिएशन। और इसमें हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं। यस, so next is revaluation। revaluation means beta, sometimes government deliberately decrease the foreign exchange rate। जानबूझकर एक्सचेंज रेट को कम कर देती है, और रेट कम करने का मतलब है रिवैल्यूएशन। सो हमने सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो आज सीखी है, वो ये फर्स्ट, डेप्रिसिएशन जो मार्केट फोर्स की वजह से होता है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मार्केट कंडीशन जैसे चेंज होगी, डिमांड सप्लाई, ये अपने आप कम ज़्यादा होगा। और डिवैल्यूएशन, इसे गवर्नमेंट डेलिब्रेटली मीन्स जानबूझकर एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होते हैं। ओके, एंड एप्रिसिएशन ये मार्केट कंडीशन के ऊपर होता है, मार्केट फोर्स के ऊपर होता है। बट जो रिवैल्यूएशन है वो डेलिब्रेटली गवर्नमेंट करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम करने के लिए। ओके, सो अब आपको ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। सो जस्ट कीप ऑल द थिंग्स इन योर माइंड एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, सो मे बी यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड आफ्टर दैट। रेट ऑफ एक्सचेंज आपको कैसे लर्न करना है, रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, दूसरा आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट, और थर्ड है आपका इंपोर्ट। इनका क्या रिलेशन है, जब भी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा बेटा, एक्सपोर्ट हमेशा बढ़ेगा और इंपोर्ट उस टाइम पर कम हो जाएंगी। रीज़न, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने का मतलब है कि इंडियन गुड्स सस्ते हो गए हैं। ओके, यानी फॉरनर्स हमारे यहाँ से सस्ता सामान लेकर जा रहे हैं, और जब सस्ता मिलेगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ओके, लेकिन हम बाहर से उतना, हमें सामान बाहर से महंगा मिलेगा, क्योंकि हमारी जो करेंसी उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। सो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे। लेकिन जब रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि फॉरनर्स को हमारा सामान महंगा मिल रहा है और हमें उनका सामान सस्ता मिल रहा है, इसीलिए इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है कि रेट ऑफ एक्सचेंज और एक्सपोर्ट में पॉजिटिव रिलेशन। जब भी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट उसके अपोजिट रहेगा। Okay, so rate of exchange, when rate of exchange will increase, export will increase, import will decrease, or when rate of exchange decrease, export also decrease,
but imports will increase. Just remember two things only, or this chapter will be clear to you. Okay, कि रेट ऑफ एक्सचेंज और एक्सपोर्ट साथ साथ चलेंगे बिल्कुल रियल ब्रदर की तरह, और इम्पोर्ट उसके अपोनेंट रहेगा, बिल्कुल अपोजिट रहेगा. दो चीज़ें साथ होंगी, एक अलग होगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है. यस डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज next question that we are going to discuss, that is gold standard system of exchange rate. This is the part of fixed exchange rate, as we study that fixed exchange rate which is decided by the government only. Okay, so what measurement government takes about the fixed exchange rate? So dear student, gold standard system we are going to start. It means every country's currency is pegged with the gold. ओके, हर कंट्री करेंसी को गोल्ड के साथ प्लेस किया गया है. इट मीन्स वी कैन बाय एनी कंट्रीज करेंसी विद गोल्ड. ओके, हम गोल्ड के साथ, अगर हमारे पास गोल्ड है तो हम किसी भी कंट्री की करेंसी को बाय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. दिस इज ओनली अ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. ओके, नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. यस डियर स्टूडेंट, ब्रेटन वुड्स सिस्टम is named after the United Nations Monetary Financial Conference held at the Bretton Woods, USA. It means USA में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF. आपने बहुत बार सुना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन USA, एंड द नेम ऑफ प्लेस इज ब्रेटन वुड्स. दैट्स वाई दिस इज नोन एज ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ब्रेटन वुड्स सिस्टम मीन्स इवन व्हेन इट वॉज अ फिक्स एक्सचेंज रेट, ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट है, बट सम एडजस्टमेंट आर अलाउेबल. कुछ एडजस्टमेंट अलाउेबल होंगी इफ़ IMF इज़ रेडी फॉर दैट, अगर IMF उसके लिए हमें परमिशन दे तो. इट मीन्स फिक्स एक्सचेंज रेट, एवरी गवर्नमेंट डिसाइड फिक्स एक्सचेंज रेट, बट समटाइम्स इफ़ वी नीड सम एडजस्टमेंट, अगर हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द परमिशन ऑफ IMF. IMF की परमिशन के साथ ही हम उसे कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. सो व्हाट इज डिसाइडेड इन दिस ग्रुप? डिफरेंट करेंसीज वर pledged or related to one country's, that is one country's currency, that is US डॉलर. हर कंट्री की करेंसी US डॉलर के साथ रिलेटेड होगी. US डॉलर वॉज असाइन गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस. US डॉलर की गोल्ड में एक फिक्स वैल्यू है. सेकेंड, नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. अगर किसी भी कंट्री की करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट हो सकती है तो अल्टीमेटली वो US डॉलर में भी कन्वर्ट हो सकती है. गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज. पैरिटी मीन्स रिलेट, उनके बीच का रिलेशन. इट मीन्स गोल्ड जो है वो दो कंट्री की करेंसी के बीच में हमेशा एज ए प्लेस लिया जाएगा. ओके, और एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी वॉज पॉसिबल. अगर थोड़ी एडजस्टमेंट हमें करनी है वैल्यू में, करेंसीज़ की वैल्यू में, एक्सचेंज रेट में, बट ओनली इफ़ अलाउड बाय द IMF. और ये तभी हो सकता है जब IMF अलाउ करेगा. इवन दिस सिस्टम वॉज अबेंडेड इन 1977. इट वॉज रिप्लेस बाय द फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. इस सिस्टम के साथ बहुत सारा सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी फिक्स के साथ. मैनी कंट्रीज आर जस्ट अपोजिट टू दैट एक्सचेंज रेट. सो देन आफ्टर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट डेवलप्ड और रिप्लेस्ड. ओके, सो यू हैव टू लर्न अबाउट दैट. सिंपल आपको दो वर्ड्स लर्न करने हैं. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम मीन्स दैट एनी कंट्रीज करेंसी कैन बी प्लेस विद द गोल्ड. गोल्ड में प्लेस हो सकती है. फिर ब्रेटन वुड्स की थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, दैट ब्रेटन वुड इज़ अ प्लेस इन USA वेयर फर्स्ट टाइम इन 1944 IMF International Monetary Fund was established. और according to this system only few decisions were taken, that different currencies were placed in the one country's currency, that is US डॉलर. US डॉलर जो है वो हर कंट्री की करेंसी के साथ प्लेस होगा. हर कंट्री की करेंसी को US डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है. और गोल्ड जो US डॉलर है उसकी गोल्ड में एक फ़िक्स वैल्यू हमें लेकर चलनी होगी. वो गवर्नमेंट कंट्री डिसाइड करेगी, IMF डिसाइड करेगा. उसके बाद अगर US डॉलर में कोई भी कंट्री की करेंसी कन्वर्ट हो रही है तो वो गोल्ड में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, सो ये आपको चीज़ें याद रखनी है. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज़
fixed exchange rate and flexible exchange rate. What is fixed exchange rate and flexible exchange rate? We have studies. Fixed exchange rate is determined by the government. Very easy difference, or you can learn ultimately. Yes, fixed exchange rate is determined by the गवर्नमेंट. फिक्स एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिसाइड करता है, बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स. डिमांड और सप्लाई फोर्सेज इसे डिटरमाइन करती है. देन आफ्टर changes in the fixed exchange rate are planned and introduced by the government and central bank. अगर कुछ चेंजेस होते तो उसकी प्लानिंग गवर्नमेंट और आरबीआई करता है, बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंजेस सिर्फ मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करते हैं. ओके. उसके बाद है फिक्स एक्सचेंज रेट में आपका रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है इंटेंशनली, बट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है वो मार्केट फोर्स की वजह से होते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल का पार्ट है. ओके. उसके बाद है बेटा, टू मेंटेन द फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट नीड्स टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फिक्स एक्सचेंज रेट को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखना होता है. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डज नॉट रिक्वायर, लेकिन फ्लेक्सिबल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. सप्लाई और डिमांड ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है. डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज़ वेरी लो, क्योंकि इसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो इसमें सट्टेबाजी स्पेकुलेशन की कंडीशन कम होती है. बट हेयर द प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, और द मेन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स इज टू अर्न प्रॉफिट. तो यहाँ स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है. सो डियर स्टूडेंट, जस्ट रिवाइज ऑल द पॉइंट्स. सो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, वी हैव डिस्कस some important points related to the फिक्स एक्सचेंज रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन क्या होता है, क्या डिफरेंस है. एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन क्या होता है. उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, या ब्रेटन वुड सिस्टम, जिसे एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज सम एडजस्टमेंट आर अलाउड बाय द IMF, दैट्स वाई वी कॉल इट flexible, we call it adjustable peg system. And what is the difference between fixed or flexible, we have discussed. So learn all the points and just write also in your fair notebook, dear students. So stay blessed, stay safe at home.